जगन्नाथपुरी मंदिर में रत्न का भंडार आज खुलने वाला है। पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 46 साल बाद ये भंडार खोला जाएगा। रत्नों को रखने के लिए बॉक्स भी मंगाए गए हैं और करीब 1 घंटे बाद 1:28 पर जो कि मुहूर्त है, भंडार को खोला जाएगा। पारंपरिक पोशाक के साथ हम सबसे पहले मंदिर के भीतर अगर बात करें, ओपनिंग ऑफ द रत्न भंडार ऑफ द श्री जगन्नाथ टेम्पल, एंड टुडे एज पर द डिसीजन द रत्न भंडार इज बीइंग ओपन्ड. So there is a very set guidelines for opening of this Ratna Bhandar. Authorized representatives of various Sebayat groups, officials from the Archaeological Survey of India, the representative of Sri Gajpati Maharaj and others would be there. So we'll follow the procedure and the entire proceedings will be video recorded for our record, not for any publicity. That will be strictly confidential, and very detailed guidelines have been received by the Sri Jagannath Temple Administration, and we will follow those guidelines. As a standard operating procedure has been met for that, so what would be the category and what would be the counting and valuation process? There are 3 steps of this SOP. One is the opening of the Bahara Ratna Bhandar, the outer Ratna Bhandar, the store of the valuables. And for the inner Ratna Bhandar, there is another set of guidelines. So the opening will be one. Then we have also made a temporary strong room because we have to shift these valuables from this Ratna Bhandar to a temporary strong room. So that those arrangements also have been made. Once the shifting is made, the third step would be to inventorize the valuables, the gold, ornaments, and all the jewelry and other items, precious items will be inventorized. So for that, there would be a separate set of guidelines. So today, the opening of the Ratna Bhandar, we just seek the blessings of the Mahaprabhu that gets done, and then subsequently the other steps will be followed. Who would be the member to be part of this committee and the Chief Administrator of the Sri Jagannath Temple Administration Puri has been authorized to lead that delegation, but there would be members from all the relevant Sebayat Nijogs and also relevant officials of the state government, including the district magistrate, the collector of Puri, and there would be representative from the Sri Gajpati Maharaj. There would be superintending archaeologists from the ASI, the Archaeological Survey of India, because the structural safety of the Ratna Bhandar is also a prime concern. So the government wants it to be repaired and restored to its pristine glory. Sir, as a lack of devotees, कहा जा रहा है कि रत्नों की सुरक्षा सबसे अहम जिम्मेदारी है और इसी के तहत सारे प्रिकॉशन के साथ रत्न भंडार को खोला जाएगा। पहले से गाइडलाइन तैयार है और उसी गाइडलाइन के तहत ही रत्न भंडार को खोला जाएगा। तो आध्यात्म और सुरक्षा दोनों के साथ ही ये काम होना है। चलिए आपको सीधे पूरी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद हैं, रजनीकांत से हम जानेंगे। रजनीकांत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सेफ्टी मेजर भी है और इसके साथ एक धार्मिक प्रोसीजर जिसे कहते हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो दोनों हैं, कैसे वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, तस्वीरों के साथ समझाएं और डिटेल्स दें। हाँ, कल रात को ही जब जो कानून मंत्री ने एक एसओपी जारी किए थे कि किस तरह से प्रोसीड्यूर रहेगा खोलने के लिए, कल शाम रात से ही सब जितने थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक जो हमारे जो न्यायाधीश थे, जो रिटायर्ड न्यायाधीश जो इनके चेयरमैन है कमेटी के, वो भी पहुंच गए यहाँ पर और पूरी प्रोसीड्यूर मतलब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बक्सा भी आके पहुंच चुका है, जहाँ पे रत्नों को जो निकाला जाएगा उनको अंदर रखा जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा। और इतना है कि मतलब समय अगर हम बोला जाए तो 1:30 बजे तक खुलने की संभावना है जो कहा जा रहा है अभी तक। और रत्न भंडार को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के अंदर में ही आप एक सुरक्षित जगह तो मंदिर का अंदर वही बगल में ही बनाया गया है, जहाँ पे वहाँ पे सुरक्षित रखा जाएगा और गिनती किया जाएगा। और इस बार ये हुआ है कि इस बार डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन मतलब अगर 50 साल या 100 साल बाद खुला जाएगा, सबके फोटो भी उठाए जाएंगे और उनको पर डिजिटल लाइब्रेरी का तरह उनको रखा जाएगा। क्या क्या अलंकार है, क्या क्या आभूषण है, क्या क्या सोने है या हीरे है, जवाहरात है, जो भी है उनका एक डाटा बनाया जाएगा, उसको भी रखा जाएगा। बिल्कुल रजनीकांत, ये बहुत बड़ा दिन है जहां पर जगन्नाथपुरी का ये खजाना
अब इतने सालों बाद खोला जाएगा तो उसकी रख रखाव या फिर इस पूरी प्रक्रिया की चहल पहल आपके पीछे दिखाई सुनाई दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।